رہائی کے آرڈر ہو گئے، فیصلہ جو ہے ہمیں ملے گا تو ہم بالکل انشاءاللہ لے کے جائیں گے اور خان صاحب کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے۔ دیکھیں سائفر والے معاملے کے اوپر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 6 دن پہلے ایک بات چلائی گئی کہ سائفر والے معاملے کے اوپر گرفتاری ہو گئی ہے، تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے متعلقہ کورٹ میں اس بندے کو پیش کرنا ہے، اور اگر آپ نے اس بندے کو گرفتار کیا ہوا ہے تو آئین کا آرٹیکل 10(1) جو ہے وہ واضح کہتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو انفارم کرنا ہے کہ آپ کو اس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ نہ انہیں ابھی تک کوئی انفارم کیا گیا ہے، نہ ہمیں کوئی پتہ ہے، تو لہٰذا اگر وہ گرفتاری پرانی ہوئی تو وہ بالکل غیر قانونی ہوگی، وہ فوراً غیر قانونی ڈکلیئر ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ میں بھی ہماری اس حوالے سے درخواست پینڈنگ ہے اور اسلام آباد میں بھی پینڈنگ ہے۔ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ خان صاحب جو ہیں آج ہر صورت باہر ہوں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو جی، مبارک آپ کو۔ آج ہم سمجھتے ہیں آئین، قانون اور انصاف کی فتح ہوئی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص کو عمران خان کو 25 دن آپ نے جیل میں رکھا، اس کے بعد آج آپ نے ضمانت دی ہے، تو اس 25 دن کو کمپنسیٹ کون کرے گا؟ اس کی تلافی کیا ہوگی؟ اور جب ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ متعصب ہمایوں دلاور جج کا فیصلہ غیر قانونی ہے، اس نے نہ سپریم کورٹ کے حکم کو مانا، نہ ہائی کورٹ کے حکم کو مانا، یک طرفہ فیصلہ دیا، ہماری فہرست گواہان نہیں پیش ہونے دی، اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 4 دن کی تاریخ دوں گا۔ 4 دن کے بعد پہلی تاریخ 17 دن کے بعد آئی۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انصاف کا قتل ہوا ہے، جو سب نے دیکھا ہے۔ تو اصول ہے انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ جب یہاں انصاف کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو قابل افسوس سچویشن یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت خاموشی سے بیٹھی رہی، لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ حق سچ کی فتح ہوئی ہے، آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے، اور ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز کو، ہماری سیاسی جمہوری طاقتوں کو آج دوبارہ سوچنا ہوگا کہ آج جو غریب آدمی کی تباہی ہو چکی ہے، جو آج ملک تباہی و بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے ملک کے سابق جو سیاسی جماعتیں تھیں، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جماعتیں، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، آج کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان کی ایکسٹینشن ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود غریب آدمی بجلی کا بل بھرنے کو تیار نہیں۔ عمران خان کی دشمنی میں سوال کرتا ہوں تمام سٹیک ہولڈر سے، اپنے اسٹیبلشمنٹ سے، کیا نیشنل سیکیورٹی، کیا پاکستان کی بقا، کیا 25 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود کے مقابلے میں ایک شخص کی دشمنی آپ کو اتنی اوور ویلمنگ، آپ کو اوور ویلم کرتی ہے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ پیدا ہو گئے، فضا ختم کریں۔ رہتے ہیں، اس لیے آج آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی تمام پالیسیز ریکنسیڈر کریں۔ ہمارے مقتدر طبقے اور حلقے اس میں عمران کی دشمنی میں اتنا آگے نکل نہ جائیں کہ ملک کو داؤ پہ لگا دیں، اور اس کے ساتھ تمام ادارے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے منصف اپنا وہ پازیٹیو رول ادا کریں جو آئین اور قانون ان کو حکم دیتا ہے اور اجازت دیتا ہے۔ تھینک یو۔ ہماری امید تو ہمیشہ ہوتی ہے، چاہے وہ امید جس سے ہو وہ دے یا نہ دے۔ کیا دیں گے نبی صاحب؟ انصاف دیں۔ آپ کیا سمجھ رہے تھے؟
ये कैसा सर क्या आज वैसे तवक्कुआत क्या लग रही हैं आपको कि अदालत किस ऊंट जो है किस करवट बैठने जा रहा है? ऊँट तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। इंसाफ ये है कि ये 3 साल की सज़ा है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, शॉर्ट टर्म सेंटेंस है, वाशगाह फीस में गलतियाँ हैं। कानून और इंसाफ के तहत ये सज़ा सस्पेंड होनी है। अब अगर हमारी शून्य किस्मत हमारे साथ इंसाफ नहीं होता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सर बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद जो फैसले में कोताही आती है, गलतियाँ थी, जिसका सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट भी जिक्र कर चुका है, शायद रिमांड बैक करे फैसले को, दोबारा इसको सुना जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है? मेरा ख्याल है ये बात रिमांड पे नहीं हुई है, 426 पे आर्गूमेंट्स हुए हैं और आज 426 पे ही फैसला मुतवक्के हैं। लेकिन अगर ये रिमांड बैक करेगी तो फिर फैसला कलअदम होगा, यानी कि जो सजायाबी का फैसला है वो ख़त्म तस्वुर होगा, तो फिर भी दूसरी सूरत में खान जो है इस केस में रिलीज़ होगा। FIA की जो टीम है वो अटक जेल पहुंच गई है, मीडिया ही बता रहे, इतलात है, तो उसकी गिरफ्तारी ये तो मीडिया ने कल से FIA टीम पहुंचाई हुई है। तो आप लोगों ने कुछ इंतजाम वापस भी ले आए, वकला ने कुछ इंतजाम किए हैं कि उसकी गिरफ्तारी ना अमल में लाया जा सके, खान को रिहाई मिल जाए? देखिए आज हमारी पिटीशन लगी थी ना, और जहाँ तक साइफर का ताल्लुक है, साइफर एक वाइड केस है जो FIR उस वक्त दर्ज हुई जो जब खान साहब जेल में थे, तो उसको हम उसी अंदाज में फ़ाइट करेंगे जिस तरह रूटीन के केसेस फाइल होते हैं। बकाया केसेस के लिए आज सलमान सफदर साहब ने पिटीशंस की थी जो चीफ साहब ने समाअत की है। कितने मुकदमात है सर जिनके अंदर गिरफ्तारी डली हुई है इमरान खान साहब की? 11 बजे सुनाना था, 12:30 बज गए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमूमन अदालती कार्रवाइयों में ताख़ीर होती है। अभी तक सर कितने मुकदमात हैं जिनमें मैंने कहा अमूमन होती है। हाँ जी, कितने मुकदमात हैं जिनके अंदर गिरफ्तारी डल चुकी है? 25। जी हाँ सर आज अगर एक और तारीख मिली तो फिर आप कोर्ट में सनी लियोन के डायलॉग कहेंगे तारीख तो तारीख? यार अगर दोबारा तारीख में ये देते हैं, मेरा ख्याल है आज चीफ साहब ने कह भी दिया है कि आज मैंने फैसला सुनाना है, वो तो सर कब से कह रहे हैं कि फैसले सुनेंगे, तो फिर आप इस तरह करें ना, आज मेरे साथ चले जाएं। जाने नहीं दे रहे। हाँ, कौन जाने नहीं दे रहे? पुलिस वाले सोशल मीडिया को नहीं जाने सर इसके हवाले आप एक काम करें ना, एक पिटीशन नहीं पिटीशन नहीं होगी, हाई कोर्ट के खिलाफ पिटीशन नहीं होती है। आप रजिस्ट्रार को, चीफ साहब को एक दरख्वास्त लिख दें, आपका बुनियादी हक है कि आप जाएं, कवरेज करें, और अगर वो आपके साथ कोई पुलिस अलकारान आपको नहीं छोड़ रहे हैं तो आप पिटीशन करें, मैं आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम मौजूद थे और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की जो हमने इस्तदा की थी सजा मुअत्तली की, सजा जो है सस्पेंड हो गई है और हमारी दरख्वास्त जो है चीफ साहब ने कोर्ट में आके कहा है कि आपकी दरख्वास्त जो है मंजूर हो गई है। तफसीलन फैसला जो है बाद में दिया जाएगा। खान साहब की इस मुकदमे में जमानत हो गई है। दूसरी बात कि मुख्तलिफ मुकदमों में गिरफ्तारी के हवाले से मैं बता दूं कि वाज़ेह तौर पर चीफ साहब के भी अगले दिन हम कोर्ट में पेश हुए और उनके रिमार्क्स थे कि आसिफ जरदारी केस के अंदर ये तय हो चुका है कि एक बंदा जब गिरफ्तार होगा तो दूसरे किसी मुकदमे में उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दूसरे नंबर पर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, दरखास्त दी है कि खान साहब की जमानत जो है किसी मुकदमे में खान साहब को गिरफ्तार ना किया जाए। किसी मुकदमे में जो कि तोशाखाना केस के अंदर खान साहब को सजा हुई, उसके बाद कोई अगर दर्ज हुआ है, चाहे साइफर वाला मामला हो, चाहे कोई और FIR जो कि नामालूम हमें अभी तक नजर ना आई हो, तो किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। वो भी हमने इस्तदा की है। हमें उम्मीद है कि आज वो भी फिक्स होगी और जो दीगर दरखास्तें खान साहब की जो है वो जमानतें खारिज हुई थी एंटी टेररिज्म कोर्ट से और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, उनको भी हमने चैलेंज किया हुआ था। अभी हम पेश हुए हैं, उसके ऊपर एतराज लगा हुआ था, वो भी हमारा एतराज खत्म हो गया है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आज उसके ऊपर भी फैसला आएगा और खान साहब की तमाम मुकदमात में जो है वो प्रोटेक्शन मिलेगी और खान साहब जो है इंशाल्लाह आज बाहर बाइज्जत जो है बाहर आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। देखें जब फैसला देखें, रिहाई के ऑर्डर हो गए, फैसला जो है हमें मिलेगा तो हम बिल्कुल इंशाल्लाह लेके जाएंगे और खान साहब को अपने साथ लेके आएंगे।
देखें, साइफर वाले मामले के ऊपर मैं पहले बता चुका हूं कि 6 दिन पहले एक बात चलाई गई कि साइफर वाले मामले के ऊपर गिरफ्तारी हो गई है, तो 24 घंटों के अंदर अंदर कानून ये कहता है कि आपने मुतलका कोर्ट में उस बंदे को पेश करना है। और अगर आपने उस बंदे को गिरफ्तार किया हुआ है तो आइन का आर्टिकल 10(1) जो है वो वाजे कहता है कि आपने उस बंदे को इन्फॉर्म करना है कि आपको इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। ना उन्हें अभी तक कोई इन्फॉर्म किया गया है, ना हमें कोई पता है, तो लिहाजा अगर वो गिरफ्तारी पुरानी हुई तो वो बिल्कुल गैर कानूनी होगी, वो फौरन गैर कानूनी डिक्लेयर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी इस हवाले से दरखास्त पेंडिंग है और इस्लामाबाद में भी पेंडिंग है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि खान साहब जो है आज हर सूरत बाहर होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। इमरान खान की जो पिटीशन फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस थी वो मंजूर हो गई है। उसके 5 नताइज निकले हैं। पहला नतीजा उसका ये निकला है, जो इमरान खान की सेंटेंस की सस्पेंशन का पहला नतीजा ये निकला है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से अब बहाल हो गए। जो सज़ा का ऑर्डर था, सज़ा का ऑर्डर वो सस्पेंड हो गया, इसलिए वो चेयरमैन थे तहरीके इंसाफ के। इमरान खान चेयरमैन हैं और इंशाल्लाह चेयरमैन रहेंगे। दूसरा इसका नतीजा ये निकला है कि फौरी तौर पे उनकी रिहाई होनी चाहिए और किसी जगह पे भी कोई ये जो बैठी हुई है गवर्नमेंट जो सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए आई है, ये कोई ऐसा गंदा खेल ना खेले जिसकी वजह से इनके ऊपर जो छोटा मोटा एतबार अगर किसी को है तो वो उठ जाएगा। इसलिए इंश्योर करे प्राइम मिनिस्टर, इंश्योर करे वज़ीर दाखिला के इमरान खान को रिहा किया जाए। इसका जो दूसरा है, मैंने बता दिया, तीसरा पहलू ये है कि ये तय हो गया कि ये एक कैंगरू कोर्ट का फैसला था और कैंगरू कोर्ट का फैसला आज मुअत्तल हो गया है। और चौथा इसका जो नतीजा है वो ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान की रिहाई के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और कौम इलेक्शन, इमरान खान की जो पिटीशन फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस थी वो मंजूर हो गई है। उसके 5 नताइज निकले हैं। पहला नतीजा उसका ये निकला है, जो इमरान खान की सेंटेंस की सस्पेंशन का पहला नतीजा ये निकला है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से अब बहाल हो गए। जो सज़ा का ऑर्डर था, सज़ा का ऑर्डर वो सस्पेंड हो गया, इसलिए वो चेयरमैन थे तहरीके इंसाफ के। इमरान खान चेयरमैन हैं और इंशाल्लाह चेयरमैन रहेंगे। दूसरा इसका नतीजा ये निकला है कि फौरी तौर पे उनकी रिहाई होनी चाहिए और किसी जगह पे भी कोई ये जो बैठी हुई है गवर्नमेंट जो सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए आई है, ये कोई ऐसा गंदा खेल ना खेले जिसकी वजह से इनके ऊपर जो छोटा मोटा एतबार अगर किसी को है तो वो उठ जाएगा। इसलिए इंश्योर करे प्राइम मिनिस्टर, इंश्योर करे वज़ीर दाखिला के इमरान खान को रिहा किया जाए। इसका जो दूसरा है, मैंने बता दिया, तीसरा पहलू ये है कि ये तय हो गया कि ये एक कैंगरू कोर्ट का फैसला था और कैंगरू कोर्ट का फैसला आज मुअत्तल हो गया है। और चौथा इसका जो नतीजा है वो ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान की रिहाई के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और कौम इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ेगी। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।